ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के अव्यक्त बाप दादार मधुर महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा महावाक्य 13 জুন বিশেষভাবে বাবা আমাদেরকে ইশারা দিয়েছেন বাপ সমান হওয়ার জন্য। বাপ সমান বাবা আমাদেরকে চাচ্ছেন, আর আমাদেরকেও বাপ সমান হওয়ার জন্য তখন কি করতে হবে? চেষ্টা করতে হবে। এই সময় আমরা চেষ্টা করলে সেটা আমরা পারবো। তো কীভাবে পারবো ওইটাকে আমাদের নজর রাখতে হবে। তো বাপ সমান হওয়ার জন্য আমরা স্মৃতি দিবস পালন করতে আসছি। স্মৃতি দিবস সেই সমর্থী দিবস। বাবার সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বলছেন। সেবা করার জন্য কারো জন্য সেবা কেউ আটকাইতে পারবে না। সেবা ভিন্ন ভিন্ন সেবা আছে, সেবারও মার্কস বলেছেন বাবা। তারপরে ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের প্রতি কি আশা রাখিয়েছেন সেই আশাটাও বাবা আজকে শুনিয়েছেন। তো আমরা সবভাবে শুনে নিব বাবার মহাবাক্য, আর খুব অ্যাটেনশন দিব বাবার মহাবাক্যটা শোনার জন্য, আর যত পারা যাবে তত ফলো করার চেষ্টা করব। কেন? ফলো ফাদার। তো ফলো ফাদারও বহুত ত্যাগ আর তপস্যা আধারে এই পদটা নিয়েছেন। তো বাবা আজকে বলছেন আমরা রাজা হওয়ার জন্য আসছি, প্রজা হওয়ার জন্য আসি নাই, রাজপদ নেওয়ার জন্য। এটা হলো রাজযোগ, এটা প্রজা যোগ না। তো আমরা রাজা হওয়ার জন্য কি কি পুরুষার্থ করব সেগুলাও বাবা থেকে শুনে নিচ্ছি। तो बाबा बोलें स्नेही और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन स्मृति स्वरूप तैयारी करार बाबा প্রত্যেকটা বাচ্চাদেরকে চারোদিকে বাচ্চাদেরকে দেখছেন, সমর্থ বাচ্চাদেরকে দেখছেন, শক্তিশালী বাচ্চা। কমজোর বাচ্চাদেরকে দেখছেন না, শক্তিশালী বাচ্চাদেরকে বাবা দেখছেন। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ, स्नेह হইতে লাগবে, সমর্থ মানা শক্তিশালী, দুটাই হইতে লাগবে। दोनों की बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। दुटारे बैलेंस रखार दिन। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थ दोनों की समानता के वरदानी का दिवस है। दुटार समानतार वरदानी दिवस। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, যেই বাবার স্মৃতিতে ওনার স্নেহে আমরা ওনার লয়ে লীন হচ্ছি, সে ব্রহ্মা বাপ स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ স্যাম্পল रहा। একটা স্যাম্পল দেখি না আমরা। তো বাবা আমাদের সামনে পুরা বিশ্বের সামনে একটা উদাহরণ থাকলেন। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। ওখানে বাবাকে দেখা গেল কি খুব অতি স্নেহ মধ্যে আছে, আর তুরন্ত দেখা গেল একদম শক্তিশালী স্থিতি হয়ে গেল। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाया। स्नेह दिए शक्ति सेना तैयारी करलें। विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सेवार जन्य निमित्त बानिए दिल। कत शक्ति सेना तैयारी करलो। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव। स्नेही तो बनो किन्तु नष्ट मोहा হইতে লাগবে, কারোর সাথে মোহ রাখা যাবে না।
এটা নাকি সোনার লোহার জঞ্জির ভাঙলাম ছাড়ে আসলাম আর সোনার জঞ্জিরে ফাঁসবো, ওটাও বাবা কিন্তু বলে নাই। কি বললেন? স্নেহী ভব কে সাথ নষ্ট মোহা কর্মাতীত ভব का পাঠ পড়ায়া। বাচ্চাদেরকে বাবা কি পাঠ পড়াইলো? স্নেহী ভব, কিন্তু সাথে সাথে কি বল দিল? এদিকে নষ্ট মহাও বনো। তারপরে কি বললেন? এদিকে নিজের স্টেজটাকে, এই পাঠটাকে বাবা কর্মাতীত স্টেজ জন্য পাঠ পড়িয়ে দিলেন। अंत तक बच्चों को सदा न्यारा और सदा प्यारा का यही न्यारा सदा न्यारी की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। न्यारा प्यारा का दृष्टि दिलो और यही वरदान दिए गए। आज के दिन चारों ओर के बच्चे बाबा की देख लेन 18 जनवरी আসতে ही चारों दिगेर বাচ্চাগুলার তো মন একদম বাবার কাছেই চলে যায়। তার মধ্যে আসলো 18 জানুয়ারি, সে বাবার ওই দিন। তো বাবা কি দেখলেন? আজ কে দিন चारों ओर के बच्चे, सब खानेकार বাচ্চা ভিন্ন ভিন্ন रूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, सने से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभव से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। केउ बुद्धि द्वारा चले गेलो और केउ दिव्य दृष्टि निये चले गेलो। बाप दादा ने सभी बच्चों के, बाप दादा की करलेन सब बाच्चागुलाके शने और सब बच्चा के बाबा की बोलें समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया। सबार समान भावे स्नेह भालोबासा स्वीकार करलेन, दिल से स्वीकार किया। और रिटर्न में सभी बच्चे को रिटर्न की करे दिलो, बाप दादा समान भव, बाप दादा समान भव का वरदान दिए दिलेन। वरदान दिया और दे रहे हैं, दिलो और देते থাকবে। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप दादा जानें যে বাচ্চাদেরকে ब्रह्मा बाप से अति स्नेह, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। माँ साथे বাচ্চাদের একটা आंतरिक ভালোবাসা থাকেই। इस कारण बाप जानते हैं, बाबा जानें कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, ब्रह्मा माँ के सबाई बहुत स्मरण करे। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप, स्नेहर प्रत्यक्ष स्वरूप हইল समान बनना। যদি কাউকে আপনি স্নেহ ভালোবাসেন তার মতন হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তার গুণগুলাকে আমরা ফলো করি, তার মতন ড্রেস, তার মতন বাড়ি, সব কিছু মানে চাই কি তার গুণটা যেমন আছে আমারও এরকম হোক। মানে স্নেহের প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা ফলো করার চেষ্টা করি, है ना। तो जितना जितना दिल का सच्चा प्यार, অন্তরের সত্যভাবে ভালোবাসাটা লাগবে। बच्चों के मन में फलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनने वाला नहीं, वियोगी बनाने वाला नहीं, लेकिन योगी बनाने वाला, राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला। राजयोगी, राज के जाने राजयोगी। अलौकिक माँ के बच्चों के प्रति अलौकिक ममता, अलौकिक ममत्व আছে कि हर बच्चा राजा बच्चा, प्रत्येकटा बच्चा बाबार की होक राजा, राजा बनने, राजा बच्चा बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। माँ की बोलें प्रजा हওয়ার জন্য আমরা আসি নাই, প্রজা হব না, প্রজা बनने वाले नहीं हो।
आज वतन में माता पिता का रू रिहान चल रहा था। वतने माता पिता কথাবার্তা बोलছিলেন। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह का दिन क्या याद आता है। विशेष बाबा जिज्ञास करलेन ब्रह्मा माँ थीके जे विशेष स्नेहर दिन की मने पड़े। आप लोग को भी तो विशेष याद आती है ना। বাচ্চাদেরকেও বাবা বললেন যে কোনো বিশেষ তো মনে পড়ছে না। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक याद के संसार होता है। अलौकिक याद हर कदम में विशेष साकार रूप साकार चरित्र के चित्रों की याद स्वतः ही आती है। साकारेर एक एक चरित्र मने पड़े। पालना की याद, प्राप्ति की याद, वरदानों की याद स्वतः आती है। की करलेन, पालना दिलेन, प्यार दिलेन, सब किछु मने पड़े। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा, जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा। ब्रह्मा माँ की बोलने संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले अमृत बेले पहले सामान बच्चे। अमृत बेले पहले सामने सामान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और सामान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनाने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थ नहीं रहते, समर्थी नहीं रहती। इच्छा हইলে হবে না, समर्थियों লাগবে, शक्तियों লাগবে, शक्तिशाली संकल्प লাগবে। इसीलिए सामान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। হইতে লাগে বাপ समान किंतु नंबरटा पिछने थाके जाए। शनि उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं शनि और शक्ति रूप के समान स्थिति बनाने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती हैं। समस्याराई की करे जाए, स्थिति के कमजोर करे जाए। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। हाँ, पक्का ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं, अमर भी हैं, कोनो परिस्थितिते मरबेओ ना, अमर। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। पीछेও পিছাবেও না, किंतु अल्प समय जन्य कि हो जाए, परिस्थिति देखले एकदम नाजेहाल हो जाए। इसीलिए निरंतर स्नेही और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। जेटा बाबा देखते चाচ্ছেন सेटा करते पारे ना। समान स्थिति, शक्ति, स्नेह एगुला कमी पड़े जाए। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्मा हो। अनेक बारेर अनुभवी आत्मा आमरा। मानुषेर द्वाराओ परिस्थिति आसबे, प्रकृतिक द्वाराओ आसबे, मायाओ आसबे, सबे आसबे, किन्तु आमरा अनेक बारेर अनुभवी। नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। बाबा की बोलें, तुम्हारा तो त्रिकालदर्शी, तुम्हारा जानो आदि मध्य अंत। अनेक कल्प की बात छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। এই কল্পেও নতুন না বলে।
पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हो। नथिंग न्यू। यह पाठ भी पक्का, यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। समस्या आसबे কোনো নতুন ব্যাপার না, আগেও আসছিল এখনো আসছে, আসবে, আমরা পার করব। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण, अभी समस्या से घबराने का समय नहीं गवाओ। घाबड़िए परिस्थिति के देखे कायल होते लगबे ना, घबराइते लगबे ना, गवाना नहीं है। समय गवाने से नंबर पीछे हो जाएगा। माने समय यदि আমরা এখন পার করি তখন কি হয়ে যাবে, নম্বরটা পিছনে চলে যাবে। ফার্স্ট নম্বর হতে লাগবে, নম্বর পিছনে নম্বর পাওয়া যাবে। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे सामान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देखा। यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। बाप समान स्थिति के समीप, काछे देखते चाचे। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए। यही अमृत बेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। মানে বাচ্চাদেরকে দেখে বাবাকে মনে পড়তেছিল বাপ সমান। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। बाबा की देख लें कि आप स्मृति दिन মানে বাবার আজকে স্মৃতি দিবস, এটা মনে পড়তেছিল আর याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। कखन बाच्चारा बाप समान होबे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना। ब्रह्मा मार एटाई संकल्प, कखन बाच्चारा बाप समान होबे। तो बाप दादा की बोलें, এই संकल्पटाकेই তোমরা पूरा करबा। अर्थात स्मृति दिवस को समर्थी दिवस, स्मृति दिवस সেটাই হলো समर्थी दिवस, अर्थात আমাদেরকে শক্তিশালী হওয়ার दिन बनना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल। বাবার সাথে আমাদের স্নেহ, তার প্রত্যক্ষ ফল হবে যেটা বাপ সমান আমরা হইতে পারব। মা বাপ देखना चाहते हैं। माता पिता আমাদের দিকে এই আশা রাখছেন, ওনারা দেখতে চাচ্ছেন। पालना का बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता का प्रत्यक्ष फल देखने वाले श्रेष्ठ बच्चों को पहले भी सुनाया था। अति स्नेही की निशानी यह है। अति स्नेही माने अनेक स्नेह थाके, तार निशाना एटा। जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, जार साथे स्नेह थाके तार कमजोरी देखते पारे ना। अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो, फॉलो फादर करो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों साकार रूप में नुधा हुआ है। ब्रह्मा बाबा ही एक विशेष आत्मा जे उन्हीं माता पिता रोल करें। हाँ, इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। डबल पार्टनर, लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है, जो ब्रह्मा माँ और माता पिता ওনাদের অন্তরের এটা আশা আমাদের প্রতি, सर्व समान बने, सबाई समान बनो, उसको भी याद करना, समझा।
ওটাকেও মনে করবা যে বাবা ব্রহ্মা মা আর বাপ দাদার আমাদের প্রতি কি শ্রেষ্ঠ आशा। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प। आज के स्मृति दिवस সেই স্মৃতি দিবসে বাবা কি দিলেন? শ্রেষ্ঠ সংকল্প দিলেন। समान बनना ही है, बाप समान बनते ही होबे, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन नथिंग न्यू, कोनो बड़ो ব্যাপার না, नतून ना, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। नथिंग न्यू মানে নতুন ব্যাপার না, এটা কোনো নতুন না, হয়েছে পার করছিলাম তো। इससे अलबेलापन नहीं बनना। अलबेलापन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। समझ में आया? अरे কি করলাম এবার করি নাই, আগেও এরকম করছিলাম তো, প্রসাদ করি নাই আগেও তো এরকমই করছিলাম। তো এই জন্য বাবা বলে দিলেন কি এই কথাটা উল্টাভাবে নেওয়া যাবে না। পরিস্থিতি আসছে তাকে দেখি আমাদেরকে হতাশা নিরাশা না হয় মনে কি সংকল্প আনতে হবে, আর এইটা পরিস্থিতি আগেও না পার করেছিলাম আর এবারেও পার করে নিব। তখন কি হয়ে যাবেন? নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন আর বাবা मदद করবে আর আমরা পার করে নিব। लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। এই বিধি যদি আমরা করি তখন আমরা সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করতে পারবো। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। सभी विशेष उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पग पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पग जरा पृथ्वी दिए ताराओ बाबार सम्मुखे आसছিলেন। 3 पग दे और 3 लोक का मालिक बन जाए। 3 पग दिलो और 3 लोकेर मालिक होए गेलो। देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। इसीलिए होशियार को मुबारक हो। যারা হুঁশিয়ার আগে করে নিল তাদেরকে বাবা দিলেন মুবারকবাদ। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। एक দিয়ে আর লাখ পাওয়ার যে চেষ্টাটা করলো। विशेष स्मृति दिवस पर ऐसे समर्थ आत्माओं को बुलाया है। এবার স্মৃতি দিবসে এরকম আত্মাগুলাকেই বুলানো মানে বাবা নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। बाप रमणी चिट चाट कर रहे थे। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाबार काछे যারা বাবার জন্য যারা জমিন দিয়েছিল তাদেরকেই বাবা সম্মুখে মিলন মানানোর জন্য আসছে। बाप ने भी स्थान दिया ना, बाप का लिस्ट में नाम है ना, कौन सा स्थान दिया है? ऐसे स्थान कोई दे नहीं सकता। बाबा जेटा स्थान दिलो से केउ दीते पारबे ना। बाप ने दिल तख्त दिया। बाबा की दिलेन? बच्चों को दिल में बैठा लिया। तुम तो मेरे दिल में हो। बाबा तो आमादेरके की स्थान दिलो? निजेर अंतरटाई दिए दिलो। कितना बड़ा स्थान है, कत बड़ो स्थान। यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे। যতই स्थान হোক सब ওর মধ্যেই চলে আসবে। देश विदेश के सेवा स्थान सब इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? बाप का दिल तख्त।
पुरानी दुनिया में रहने के कारण अब आपने तो ईंट का मकान दिया और बाप ने तखत दिया, जहाँ सदा ही बेफिकर बादशाह बन बैठ जाना। बाबा की बोलें जे आमरा तो बाबा के जारा बाच्चारा की दिल जे बाबा के तो कलिजुग इंजिनियर ईटार मकान दिल, किन्तु बाबा की करलेन एत बड़ो दिलटाई दिए दिलेन। तो बाबा बोलें जे बेफिकर हो बसे जाओ, कोनो फिकर नहीं। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। जे जे भावे करूँ किन्तु सेवार एकटा महत्व आछे। तो सेवा तो स्थान की सेवा भी बहुत महत्व है। स्थान दिए माने जागा दिए यदि केउ सेवा करलो सेटाओ बहुत बड़ो महत्व। केन कि जागाटाते तो आसे लोक जोग ध्यान करबे, केउ शुधु जागाओ दिए दिल तो ओई जागाटा तो कत आत्मा आसे कल्याण होच्छे, तारो तो पुण्य होबे ना। सेखाने आसे मन वचन कर्म दृष्टिवृत्ति सब किछु परिवर्तन होच्छे, तो तार कत बड़ो पुण्य हइल। तो बाबा बोलें स्थान दिएও सेवार बहुत बड़ो महत्व आछे। किसी को हाजी कहकर, हाजी नाजी ना हाजी कहकर, किसी को पहले आपने बोलो कहकर सेवा कराने का भी महत्व है। आपने ही तो करते पारबेन, आपना छाड़ा के करते पारबे, आपने ही तो जानेन, आपने ही तो मालिक, आपने ही तो जिम्मेवार। एभावे करेও यदि सेवा करानो हইল तो बाबा की बोलें एटाও बहुत बड़ो भाग्य। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन माजना भी सेवा का महत्व है। भाषण देवाटाও बहुत बड़ो सेवा। सिर्फ भाषण करने वाला भाषण करने वाला पद पा लेता, उतना योग युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह मुख से कहता और वह स्थिति से करता, तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले यह हो नहीं सकता। जे कोनो केउ सेवा करछे तार फल होबेई। सेवा मने करे करते होबे, सेवाधारी भावे करते होबे, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी, जेटाई सेवा करूक किन्तु सत्य भावे करते होबे। जब दाता बरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। दाता बरदाता जखन राजी हो गेछे तखन की कमी थाकबे। बरदाता बा भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोला बाप को राजी कराना बहुत सहज है। भोलानाथ के राजी करानाटा खूब सहज। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता को श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, प्रत्येकटा विधि के सेवार महत्वटाके जारा जाने, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले। जे आमिर स्नेह आछे सेई फलटा आमी दिखाइते जानी पारी, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यारो नमस्ते। सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबार सेवा केंद्र बनानोर जन्य जारा 3 पैर पृथ्वी दिएছে
তাদের সাথে বাবার সাথে पर्सनल मुलाकात होच्छे। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देखो खुशी हो रही है। भविष्य तो जमा है ही। बाबा की बोलें बर्तमान प्रत्यक्ष फल हইল खुशी, भविष्य तो जमा है ही, भविष्य तो हो गल, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया, वर्तमानटाও श्रेष्ठ हो गल। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। भविष्य तो আমরা মনে করতে পারবো না, কিন্তু বর্তমান তো করতে পারছি না। क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति का अनुभव का ज्ञान इस समय है। प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति होबे कि अप्राप्ति होबे सबगुलो ज्ञान এই সময় আছে। वह अप्राप्ति क्या होती उसका पता ही नहीं। সতীযুগে তো অপ্রাপ্তির জ্ঞানে থাকবে না, আর প্রাপ্ত কোথায় থেকে হইলো ওইও জ্ঞান থাকবে না, তো ওই আনন্দটা থাকবে না। আজকে আমরা সেবা করি, সেবা করার পরে যখন প্রশংসা করে লোক তখন কি হয়, খুশি হয় না। কিন্তু সতীযুগে তো এইগুলা থাকবে না। প্র্যাকটিক্যাল কত খুশি হয় যদি কাউকে জ্ঞান শোনান, কেউ যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তার জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়, তার পরিবার পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন কত মনে আনন্দ আসে। তো ভবিষ্যতে তো রাজপথ হবে, বর্তমান তো বহুত কিছু পাওয়া যায় না। আর বর্তমান তো বাবা দিল তক দিয়ে দিয়েছেন। তো এই জন্য মানে তৎকালীন কি পাওয়া যায়, কত বড় খুশি পাওয়া যায়। अंतर का पता नहीं होता और जहाँ यहाँ अंतर का अनुभव है, इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा में निमित्त बनते तो तुरंत दान महापुण्य। যারাই নিমিত হয়, সবাই তার হতে পারে না, যারা হয়েছে একটুকু সেবা মধ্যে যদি সহযোগ দিতে পারে, নিমিত হইতে পারে, তো মনে করবেন যে বহুত বড় আমার ভাগ্যটা তৈরি হয়ে গেল। তুরন্ত দান মহাপুণ্য। ভাবতে ভাবতে কেউ করতে পারে না, তুরন্ত করে নিবে, চটপট জবাব দিল, চটপট করলো, সে ভবিষ্য কিছু বানিয়ে নিতে পারবে। गाया हुआ है, अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभव होती है। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति पावा जावे। सेवा भी कोई, जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते तो उस समय विशेष खुशी की अनुभव होती है। जे केनो सेवा करते शक्ति के प्राप्ति की है, स्वरूप बनकर सेवा करते हैं, सेवार स्वरूपे आसे यदि सेवा करा है तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति होती है, खुशी अनुभव है। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुना करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता, कि उस परिचय सुनार पर जागृत हो जाए, या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता, तो उसकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बाजना शुरू हो जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करना अर्थात सदा प्राप्ति की मोवा खाना। मेवा, मेवा হলো मेवा माना কি বলা যায়, ক্ষীর, মানে দুধকে জাল দেওয়ার পরে যে তৈরি হয় আমরা ক্ষীর বলি না, ওটা হইল ক্ষীর। সেবার ফল হইল মেওয়া अर्थात ক্ষীর। फल खाओ क्योंकि आज काल की ताकत की चीज है। मक्खन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम नहीं कर सकते। आज के तो এগুলা বর্তমান তো মানুষ হজম করতে পারে না, আগে তো কত হজম করে নিত, কিন্তু এখানে যেগুলা মাখন দিল, এগুলা ঘি দিল, সে লৌকিক দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না, বাবার কাছে যেটা পাওয়া গেছে। আজকাল ताकत
के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थिति सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है। कोनो सेवा खूब अंतर दिए करें, একটা জায়গাকে সাফা করতেছেন, করার পরে যখন দেখবেন একদম করে নেওয়ার পরে যখন জায়গাটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কি লাগে, মনটা খুশি লাগে। যাই হোক, সেবাটা করলাম, একটু মনটা ভালো লাগলো। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। जे कोनो सेवा करें तार पुण्यर फल तैयारी होबेई। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। मगर अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर के ये सुन करके खुशी होती है ना, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथ से करो, लेकिन सेवा माना ही सेवा, सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते, तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिलता तो सेवा क्या करेंगे, कोई प्रदर्शनी नहीं, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करें। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, कह नहीं सकते, क्यों बोलते पारबे ना। वायुमंडल को बनाने की कितनी बड़ी सेवा रही है। प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा, भाषण करेंगे क्या, वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनाना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो यह कितनी सेवा है अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, और तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार में भी तो भी सेवा का चांस है। कोई भी अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले यह नहीं मिला हुआ है। सेवार चांस पाबो एटा भाबते होबे ना, सेवा तो पावाई गेछे। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा के तरफ रुचि नहीं तो 100 मार्क्स तो गई। माने वाचा और कर्मणा माने वाचा सेवा भालो करते पारछे, मनसा सेवा भालो करछे, किन्तु कर्मणा सेवा मध्य रुचि नाई। तो बाबा बोलेन एखाने थेके 100 मार्क्स तो चले जाबे। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंडर। सेवाधारी तो ऐसे हो ना, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनी तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का करवाया, कर्मणा सेवा। माली भी बनाया तो जूता भी बनाया।
बर्तन मांजने वाले भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया। মানে একজন দ্বারাই সব সেবা করতে পারবে, ভাষণও করতে পারবে, বাসনও মাজতে পারবে। क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह न जाए। यहाँ वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्के सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, कोनो खूब सहज सब्जेक्ट तार मध्येও যদি फेल হয়ে যান, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3rd फॉर सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। टोटल में मार्क्स तो कम हो गया ना, ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो। सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया, जैसे यह मकान देने के निमित्त बने, यह सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं यह चेक करो। कोई कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा को भी 100 मार्क्स है, कम नहीं। यह सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है, वहाँ तो ड्राइंग में थोड़े सब्जेक्ट ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में गणित में ज़्यादा होगी। ड्राइंगের कम नंबर থাকে আর ম্যাথমেটিক্সে বেশি नंबर থাকে। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है, এখানে ওইটা নাই আমরা সেবা করব না, ভাষণ করলাম ভালো, কিন্তু সব সেবা করতে লাগবে, সবার মার্কস কিন্তু সমান আছে। तो ऐसे न हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लिया और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ। এদিকে হয়ে গেল মনসা আর ওয়াচা হয়ে গেল, মনসা দিয়ে ভাইব্রেশন দিলেন, ওয়াচা দিয়ে ভাষণ করলেন, কিন্তু কর্মরা কিছু করলেন না, আর ভাবতেছেন আমি তো মহাবীর হয়ে গেলাম, এটা হবে না। सभी में मार्क्स लेना है, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंडर सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। बाबा बार बार टेंशन दिलातेছেন যে ভালো করলো যে আগেই सफल করে নিল। जो जितना संकल्प करते उतना मालिक बनते। समय के पहले सफल कर लेना यही समझदार बनने की निशानी है। समझदार बनने की निशानी হইল যে সময়ের আগে করে নিবে, আর সময় এমন আসবে তো সবাই অফার করবে, কিন্তু বাবা কারো নিবে না। কেন নিবে না? কেন কি বাবাকে নিলেই বাবাকে দিতে হবে, তো কেন নিবে? যেই মা কান দিয়ে যেই কিছু নিয়ে তার থেকে সেবাই হবে না, তো বাবা নিবে কেন? बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं, साहस कर लो। अच्छा, आज के वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते वही राजयुक्त युक्ति युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते। जे ये रहस्यगुलाके जाने जाबे सेई हलो राजयुक्त, ही हलो युक्तियुक्त, और सेई होबे दिव्य गुणों थेके युक्तियुक्त। ऐसे राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी करा लेती है। राजयुक्त से आत्मा सबाई के सहजे राजी कराइते पारबे, ने मन के रेडी कराइते पारबे। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को
जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते। কখনো নিজে নারাজ থাকবে, নিজে কোনো সময় মন খারাপ থাকবে, কখনো অন্যের মন খারাপ করবে। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान রাজযুক্ত বনো। রাজকে জানলে সেই রাজযুক্ত হতে পারবে, না হলে না জানলে রহস্যগুলোকে না বুঝলে তখন কি হবে, নিজেও নারাজ থাকবে, অন্যকেও নারাজ করবে। নারাজ মানা যে রাজকে জানে না সে হইল নারাজ। स्लोगन, जो नियमित है वह जिम्मेवारी संभालने भी सदा हल्के हैं। जो नियमित है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। যারা নিজেকে নিয়মিত মনে করছে, জিম্মেওয়ারি আছে কিন্তু নিজেকে হালকা মনে করবে, আর যে নিজেকে মালিক মনে করবে সে সব সময় কি থাকবে, ভাই মালিকের উপর তো অনেক দায়িত্ব না, তো মালিক কোথায়, দায়িত্ব যখন থাকবে তখন তো নিজেকে হালকা রাখতে পারবে না। এই জন্য বাবা বললেন जो नियमित है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहते हैं। কেন তো নিমিত মাত্র, এটা তো কাজটা কার, বাবার। আমি তো শুধু নিমিত মাত্রা, যে নিমিত মাত্র মনে করবে সেই সময় কি থাকবে, সব সময় হালকা থাকবে, আর যে নিজেকে মালিক মনে করবে সেই সব সময় ভারী থাকবে। তো নিজেকে কি করতে হবে, নিজেকে নিমিত মনে করতে হবে, মানে নিজেকে যখন নিমিত মনে করবেন তখন কি থাকবেন, প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে রাজি থাকবেন, অর্থাৎ নারাজগি থাকবে না। রাজি সেই থাকতে পারবে যে রাজি থাকবে। ओम शांति।